یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ مینورٹی ونگ کھڑا ہے، کیونکہ میرا ویژن یہ ہے، میرے ساتھیوں کا ویژن یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں سر، اور دیٹ از دا اونلی ریزن کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ جوائن کی۔ جب ہم تقریر کرتے ہیں مینورٹی کی، میجورٹی کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آدھے حقوق تو وہیں تلف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بحیثیت پاکستانی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہندو کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، مسیحی کمیونٹی ہے، یا اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں اسلام سے ہٹ کے، وہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسری پارٹیز کو، تو جو ڈیلیورنس پاکستان مسلم لیگ نے کی وہ ابھی تک ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ سب سے امپورٹنٹ بات، جب میری چودھری سرور صاحب سے اور چودھری شاہد صاحب سے ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات جس میں ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ مجھے پاکستان مسلم لیگ جوائن کرنی ہے یا میں کس عہدے پہ آؤں گا، میرے ذمہ کیا ذمہ داریاں ہوں گی، تو مجھے سرور صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ڈیورنگ ڈسکشن۔ میں نے ان کے ساتھ ایک کنسرن اپنا ڈسکس کیا کہ کسی بھی پارٹی کی، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، پاکستان کی جتنی بھی بڑی نامور پارٹی گزری ہو، کبھی کسی مینورٹی کے صدر کو، چاہے وہ مرکز کا ہے یا صوبے کا ہے، اس کو کور کمیٹی میں نہیں رکھا گیا۔ اور جب کور کمیٹی میں اتنی بڑی ووٹر تعداد کو، جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم حقوق کی بات نہیں کر سکتے۔ سر میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ بات کی، اور آپ کی پریس کانفرنس میں آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی جو آج میں یہاں بیٹھے ہوئے، پلیز سنیے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں اس موقع پہ، کیونکہ ہمارا ملک اس وقت ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں پہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ووٹ کا حق کہاں استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا یہ بات بڑے دھیان سے سنیں کہ سرور صاحب نے مینورٹی کے حوالے سے اپنی سابقہ پریس کانفرنس میں ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ میں اس دن ان حقوق کو مانوں گا جس دن میں یہ سوچوں گا کہ ایک آزاد ٹکٹ پہ، یعنی جس طرح ہمارا ایک مسلم بہن بھائی اپنے حلقے سے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہے، اسی طرح ایک مینورٹی کا ریپرزنٹیٹو جو ہے وہ اوپن ٹکٹ پہ الیکشن لڑے۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے سخت موسم میں دوپہر 1 بجے سے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ آپ سب لوگ مبارک کے حقدار ہیں کہ آج ہم یہاں جمع ہیں، اور میں خاص طور پہ اس بات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعتماد بخشا کہ میں پارٹی کو یہ اعتماد دے سکوں کہ ہم ہر طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔ گورنر صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے، کیونکہ ابھی کہیں اور جانا ہے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ پہ، اس لیے میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ وہ یہاں سامنے تشریف لائیں تاکہ ہم ایک کلچر کے مطابق ان کو ویلکم کر سکیں، اور میں لوکیش کھوکھر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پلیز تھینک یو ویری مچ۔ یہاں پہ میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں جو میڈیا ہے، جب تک وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں دے گا تب تک وہ پارٹی یا وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کا بڑا خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ساتھی لوکیش کھوکھر کا، آپ سب جانتے ہیں اور بہت سے ہمارے میڈیا کے دوست بھی ان سے واقف ہیں۔ سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی مینورٹی پنجاب کے
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इनको पार्टी में वेलकम करें। मैं शुक्रगुजार हूं अपने बड़े भाई हेनरी चार्ल्स साहब का, जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। वो बिल्कुल पॉलिटिक्स के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और आज भी स्पेशली मेरी गाड़ी वो चला के लाए, यानी मैं उनकी गाड़ी में आया और वो ड्राइवर मेरे साथ आए, सामने खड़े हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि फैमिली जब तक आपको सपोर्ट ना करे आप आगे नहीं जा सकते। इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, पतरस साहब, पप्पू ट्रक्का वाले के नाम से भी मशहूर हैं। वो भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हैं। और सैमुल खोकर साहब हैं, बहुत से दोस्त हैं जिनका मैं नाम अगर लूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज की इस महफिल में भरपूर मेरा साथ दिया। अब मैं गुजारिश करूँगा मुकेश साहब को जो प्रोग्राम में क्या होगा। टाइम लेट है तो इस पूरी मीटिंग पे जाना है। तो मैं मियाँ वहीद साहब को जो सदर है लाहौर के, उन्हें बिल्कुल मियाँ साहब बिल्कुल थोड़ा टाइम आप लेंगे और हमारे साथ ज़ाहिर जजती जो करना चाहते हैं मिनॉरिटी के साथ वो आप 2 मिनट में अपना ख्याल के साथ है। मेरे हिस्से में टाइम 2 मिनट ही आते हैं। सबसे पहले तो मैं इमरान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान साहब, आपने अभी यहाँ मिनॉरिटी की बात की। मैं अपने जितने भी मेरे यहाँ पे भाई बैठे हैं, खास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी से, हम तो आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारे दोस्त हैं। ये आज की बात नहीं है, ये दरबार नजाशी बादशाह से लेके 30 जून 1947 तक का सफर जो है, हम आपके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि 30 जून 1947 जब पंजाब असेंबली का इजलास चल रहा था, तो उस वक्त एक फैसला होना था कि पंजाब नए मुल्क का, पाकिस्तान का हिस्सा होगा या कि वो इंडिया का हिस्सा होगा। उस वक्त तमाम वहां पे मेंबरान मौजूद थे, उसमें बड़े बड़े हमारे मुस्लिम लीगी भी मौजूद थे, बड़े बड़े मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे, बड़े बड़े पंडित भी मौजूद थे। और उस इजलास के अंदर आपके इल्म में होगा कि मास्टर तारा सिंह ने अपनी म्यान से तलवार निकाल के एक बात कही थी कि कौन है जो ये कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कौन है जो पंजाब पे टुकड़े करना चाहता है। लेकिन उस वक्त एक जवान, एक सफेद पगड़ी में मलबूस, बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक जवान, वो उठता है, वो कहता है कि आए निकाले तलवार, मैं सामना करता हूं, हम बनाएंगे पाकिस्तान, हम जाएंगे पाकिस्तान के साथ। वो थे सिंघा साहब, क्रिश्चियन कम्युनिटी से। आज उस बात को ध्यान में रखिए कि अगर लाहौर और उसके बाकी अजला और अटक तक पंजाब का हिस्सा ना होते, उस वक्त ये इलेक्शन हम ना जीतते, क्योंकि 88 वोट थे एक तरफ, दूसरी तरफ 88 थे। जब 88 हुए तो सिंघा से चूंकि स्पीकर थे, उन्होंने अपना वोट जब ऐलान किया पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त फजल साहिब और सीसन चौधरी साहब, ये 3 वोट क्रिश्चियन कम्युनिटी से पाकिस्तान के हक में आए और पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। हम इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इमरान भाई, ये ध्यान में रखिए कि ये वो जमात है कि जिसका पाकिस्तान बनाते वक्त भी आपने साथ दिया था, और आज पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें भी आपकी हमें उसी तरह जरूरत है, और आप हमेशा हमारा आपने साथ दिया है, क्योंकि आपकी खिदमत को हम भुला इसलिए नहीं सकते कि वो हमारे कॉलेजेस हो, हमारा एजुकेशन का शोबा हो, पाकिस्तान के बड़े बड़े कॉलेजेस का आप नाम ले लें, वो मिशनरी के अंदर चलते रहे हैं। आप
हॉस्पिटल को ले लें, आप सबसे बढ़ के नर्सिंग के शोबे के ले लें। मैं किस किस शोबे में आपकी खिदमत को सराहूं, क्योंकि मैं तो एक ही बात पे खत्म करूंगा, क्योंकि टाइम मुझे 2 मिनट मिले थे। मैं एक ही बात कहूंगा कि आप हमारे मौसम हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं इंतहाई मशहूर हूँ मियाँ रवई साहब का। हमारे कामरा उस्मानी साहब उठ के गए हैं, मुझे नहीं पता होता क्या हुई, किसी का शायद कोई। और उनको स्पीच करनी तो नहीं स्पीच पे सिर्फ रखी है, मैं 2 मिनट मुश्किल ना नहीं सर, मैंने तो पता ही नहीं, मैंने तो प्रोग्राम नहीं इनवाइट किया था, हमारा प्लान था कि उनको थोड़ा सा मौका दें। वो असल में मैं आपकी भरपूर तालियों में चौधरी साकिब साहब को जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर साहब नसरुद्दीन का जाके मैं उनको दावत देता हूँ कि वो पर आए और स्पीच करें। चौधरी साकिब साहब। वहाँ बेहतर नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका यहाँ पर मुस्लिम हाउस डेविस रोड तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। इमरान टाटा साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सदर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उनकी टीम का शुक्रिया। ये आज का जो इवेंट जो है इन्होंने सारा जो है ऑर्गेनाइज किया है। मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जिनको नहीं थोड़ा बहुत मालूम कि हमारे जो ख़ानदान की सियासत है वो चौधरी ज़ुहुरुल्लाह शहीद साहब ने स्टार्ट की थी और बड़ी जद्दोजहद उन्होंने की अपनी ज़िंदगी में और हमेशा जो है मज़लूम का साथ दिया। और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो है ख़ानदान की सियासत को चौधरी शुजात हुसैन साहब आगे लेके चले और जिस तरह वो खिदमत और रवादारी की सियासत वो करते रहे हैं और आज तक कर रहे हैं, इसी तरह ही इंशाल्लाह हम भी खिदमत और रवादारी की सियासत जो है वो करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी केयर टेकर से पहले जो पंजाब में हुकूमत रही है, जो दौर रहा है, उसमें जिस तरह की करप्शन की गई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लिए गए, भर्तियों के ऊपर भी इवन पैसे लेते रहे, इस तरह की करप्शन मैं समझता हूँ कि पंजाब की तारीख में नहीं हुई और पहले साल के अंदर ही इसका रोकथाम जो है वो करना चाहिए था। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनका भी वही रोल है, उनका भी वही जिम्मेदारियाँ हैं, उनका भी वही हक है जितने पाकिस्तान में बाकी लोग रह रहे हैं उन्हीं के साथ। और उसमें मैं ये कहूँगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का पाकिस्तान में नर्सिंग के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक रोल है। और हमें अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह नर्सिंग के कॉलेजेस जो हैं वो मज़ीद बनाएंगे ताकि पाकिस्तान भी जो है फ़िलिपीन की तरह वो मुल्क बन सके जहाँ से जो मेल एंड फीमेल नर्सेज हैं वो एक्सपोर्ट हो सकें। मगर उससे पहले बड़ा ज़रूरी है कि जो यहाँ पर कमी है मेल और फीमेल नर्सिंग की वो पूरी की जाए। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि नए मेडिकल कॉलेजेस बने जाएं पंजाब में और हॉस्पिटल जो हैं उनकी बड़ी जो है कमी है। जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह जनरल हॉस्पिटल जो हैं वो बड़े काम हैं, वो नहीं बनाएंगे। इस तरह बहुत से और भी काम हैं मुख्तलिफ शोबों में जो होने वाले हैं। हम लोग दिन रात जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से जो है कोई भी गवर्नमेंट हो उसको जो है उस पर फ़रोग़ देना चाहिए। टेक्निकल कॉलेजेस के ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। जिस तरह
ساری عمر کے پیسے اکٹھے کر کے باہر جایا جاتا ہے باہر کے ملکوں میں، اگر یہاں پر ہی سسٹم ہو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پراپر ڈپلوما دیے جائیں تو بجائے انلیگلی باہر جانے سے لیگل طریقے سے بھی باہر جا سکتا ہے، تاکہ جس طرح کا حال ہی میں یہ ایک جو ہوا بارڈر کراس کرتے وقت ثانیہ، اس طرح کے وہ نہ ہو سکیں۔ میں ایک بار آپ سب کو یہ کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ کا جو مشہور ہے، پاکستان مسلم لیگ کی جو ویژن ہے اس کو آگے لے کے چلیں، اور اب سب نے سب کو موقع دے دیا ہوا ہے، اب آپ لوگ جو ہے ہمیں بھی ایک بار موقع دے کے دیکھیں۔ اور ہمارا یہی پلان ہے کہ سارے مل کے پاکستان مسلم لیگ کو مضبوط کریں، تاکہ آگے ہمیں چانس ملے تو پاکستان کو بھی ہم انشاءاللہ مضبوط کر سکیں۔ شکریہ۔ آپ کے اندر آپ کی محبت کا، اور ایک میں آپ کو خوشخبری بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم گجرات میں ایک بہت زوردار قسم کا اور بہت بڑا اجتماع آپ کے حلقے میں مینارٹی کا اس کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں اب دعوت کے خطاب دیتا ہوں کامران صاحب، آپ ادھر ہی بیٹھے، کامران عثمانی صاحب جو یوتھ کے سینٹر کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ لیڈران بیٹھے ہم لوگ اس طرح ظاہر ہے یوتھ میں، تو لیڈران کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ کے تقریر کرنا چلے، میڈیا کہہ رہے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ادروائز ہم لوگوں کی اس طرح کی وہ تربیت نہیں ہے۔ دیکھیے عمران ٹائٹر صاحب، میں آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا پاکستان مسلم لیگ میں آنے میں، آپ کی پوری ٹیم کو، کرسچن کمیونٹی ہو، سکھ کمیونٹی ہو یا کوئی بھی کمیونٹی ہو، پاکستان واحد ایسا ملک ہے، ٹھیک ہے ایک دکا معاملات ہو جاتے ہیں، آپ نیبر کنٹریز میں بھی دیکھ لیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، لیکن پاکستان کے بھی اپنے اندر ایک محبت کا جذبہ جو ہے نا تمام مائنورٹیز کے بیچ میں رکھتا ہے۔ آپ اگر بلے شاہ کو سنیں تو بلے شاہ کہتے ہیں زہر ویکھ کے پیتا تکی پیتا، عشق سوچ کے کیتا تکی کیتا، دل دے کے دل لین دی آس رکھی، وے بلیا پیار ایہو جہا کیتا تکی کیتا۔ ہم سب کے لیے either it's Muslim, it's Christian, Sikh, Hindu, whatsoever the community you belong to, ہمارے اندر صرف اور صرف جذبہ یہی ہے کہ ہم پاکستان سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ ہم سارے تو آج یہاں بیٹھے ہیں، یہ پاکستان سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، اور یہ جو لیڈران بیٹھے ہیں، چودھری سرور صاحب، چودھری شافع صاحب، یہ پاکستان کے ان لیڈرز میں سے ہیں جن کے خلاف کسی مائی کے لال کے کبھی جرت نہیں کی کہ کرپشن کا ایلیگیشن لگائے۔ یہ وہ فیملیز بیٹھی ہیں جنہوں نے پنجاب سے لے کے پورے پاکستان تک جب انہیں موقع ملا انہوں نے ہر طرح کی ترقی کا کام کیا ہے۔ تو میں عمران ٹائٹر صاحب آپ کو یوتھ ونگ پاکستان کی طرف سے اپنی مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں، اینڈ رائٹ اکارڈنگ ٹو دی ڈائریکشن اینڈ انسٹرکشنز بائی دی لیڈرشپ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد ہم پروگرام کے آخری مرحلے میں جا رہے ہیں۔ میں آپ کی اجازت سے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں یا بنانا چاہتا ہوں، جو سب آپ کی توجہ ہونا چاہیے۔ چودھری سرور صاحب، چودھری شافع صاحب، میرا پاکستان، جب میرا پاکستان آپ کہیں گے تو ہم یہ چودھری صاحب سر آپ کی میرا پاکستان جب آپ کہیں گے تو یہ ہم یہاں پہ آ رکھیں گے میرا پاکستان، اس کے بعد دوسرا نام آگا تیرا پاکستان، ہم ایک دوسرے کی طرف اشارہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے ہم سب کا پاکستان، پھر ہم سب ایسے کہیں گے، اور یہ ہمارا اس وقت نعرہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم دوسری اسپیچ سنیں گے۔ میرا پاکستان، تیرا پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔ اور میں جو سب یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو پاسبل ہو تو ضرور اس کو منظور کریں، اگر ہمارا مسلم لیگ کا یہ نعرہ قاعدہ طور پر بنے۔ میں آپ کی بھرپور تعلیم میں چودھری سرور صاحب چیف آرگنائزر اور پنجاب کے صدر اور ایک بھرپور عزیز لیڈر اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ خطاب کے لیے آئیں۔ بہت شکریہ۔ چودھری سرور، چودھری سرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عمران ٹائٹر بھٹی صاحب آپ کو مسلم لیگ فیملی میں اور اپنے تمام
क्रिश्चियन कम्युनिटी के दोस्तों को और खास पर नौजवानों को, इसलिए कि ये मुल्क तो अब नौजवानों ने चलाना है, हमारे यूथ ने चलाना है। तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस गर्मी में, इस धूप में इतनी बड़ी तादाद में आपका सब साथियों को इकट्ठे करना, ये साबित करता है कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के सही लीडर हैं। तो मैं हमेशा से, मेरी एक सोच रही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, हुकूमत हो, कोई अदारा हो, कोई सिंगल इंडिविजुअल उसको कामयाबी पे नहीं लेके जा सकता। ये सब अगर अच्छी आपकी टीम है तो आपका बिजनेस भी चल जाएगा, आपकी जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, चाहे वो चैरिटी का है, वो भी चल जाएगा। और मुल्क चलाने के लिए अगर अच्छी टीम हो तो मुल्क भी बेहतरीन तरीके से फंक्शन करता है। तो जब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आया था चौधरी शुजात साहब की लीडरशिप में, तो मैंने एक बात कही थी कि मेरा पाकिस्तान में आने का एक ख्वाब था। वो ये ख्वाब था कि मैं एक ऐसी सियासी जमात बनाऊं जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें मशावरत हो, जिसमें ओहदे जो है खुशामद या सिफारिश पे न बांटे जाएं, ओहदे जो हैं वो कारकर्दगी के लिहाज से दिए जाएं। तो मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि इमरान टाइटस भट्टी साहब, नौफेद खोखर साहब और इनकी पूरी टीम जो है मेरिट पे ये पंजाब माइनॉरिटी विंग के सदर जो हैं वो बने हैं। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बांड जो है और मजबूत होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो टोकन रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। मैंने और शाफिर हुसैन साहब ने ये फैसला किया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज की हर लेवल पे एग्जीक्यूटिव में रिप्रेजेंटेशन होगी। जो फैसले हम करेंगे वो चाहे माइनॉरिटीज के हवाले से हो, चाहे मुल्क के हवाले से हो, उनकी मशावरत जो है उन फैसलों में शामिल है। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि हमारी जो पार्टी है ये किसानों की पार्टी होगी, ये मजदूरों की पार्टी होगी, ये जो है स्टेट यूनियंस की पार्टी होगी, ये नौजवान हमारे यूथ जो है ये इनकी पार्टी होगी, ये ख्वातीन जो है उनकी पार्टी होगी और ये माइनॉरिटीज की पार्टी होगी। और हम इंशाअल्लाह इन सब के हकूक के लिए भरपूर तरीके से जद्दोजहद करेंगे। तो मैंने मेरिट की बात की है, तो ये मुझे बड़ा इस बात पे फख्र है कि हमने सेंट्रल जो है हमारे यूथ विंग जो है पाकिस्तान का, उसकी लीडरशिप जो है हमने कामरान उस्मानी साहब को दी है। और जो कि मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये साबित किया है कि वो नौजवानों के सही लीडर हैं। और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग में यूथ को हरावल दस्ता जो है इंशाअल्लाह बनाएंगे। राशिद रियाज साहब हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट हैं और अल्लाह के फजल और करम से मुझे इस बात पे फख्र है कि इन दोनों की जो अपॉइंटमेंट है वो भी मेरिट तय हुई है। और इंशाअल्लाह ये नौजवान जो हैं हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी साबित होंगे और हमारी तंजीम जो है उसको मजबूत बनाने में हमारे यूथ जो हैं
ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. یہاں میاں وحید صاحب بھی بیٹھے ہیں اور دوست بھی بیٹھے ہیں, تو میں ان سب کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ ہم تھوڑے سے عرصے میں کم از کم پوری دنیا میں ایک بات ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ میں لوگ کثیر تعداد میں شامل ہو رہے ہیں, لیکن چند حلقوں میں جو کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بھی چند کرپٹ پولیٹیشین ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک شاید تباہ بھی انہوں نے کرنا ہے اور شاید بچانا بھی ہے, ان کی ایک شمولیت تو ان کے لیے بہت بڑی خبر ہوتی ہے. لیکن جب ہزاروں نوجوان, ہزاروں مزدور, ہزاروں مائنارٹیز کے لوگ جو ہیں ہماری پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو وہ ہیڈ لائنز نہیں ملتی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو دینی چاہیے. اور میڈیا کے دوستوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں, جب تک آپ متوسط گھرانوں کے لوگ یا نوجوانوں کو سیاست میں آگے لے کے نہیں جائیں گے تو یہ جو آزمائے ہوئے سیاستدان ہیں ان کو بار بار آزمانے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہم انشاءاللہ نئی پالیٹکس جو ہے پاکستان میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری خواہش کوئی اقتدار نہیں ہے, میری خواہش یہ ہے کہ میں ایک سیاسی جماعت بناؤں جس میں پارٹی کے کارکنوں کو وہ عزت دی جائے جو دنیا کی مہذب قوموں میں ملتی ہیں. پارٹی کے لیے قربانیاں جو ہیں بھر دیتے ہیں, دریا بچھاتے ہیں, کمپین کرتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, مارے کھاتے ہیں, لیکن جب اقتدار کی بندر بانٹ ہوتی ہے تو ان کارکنوں کا اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہمارے اقتدار میں مزدور بھی شامل ہوں گے, ہماری پاور میں ہمارے کسان بھی شامل ہوں گے, ہماری ٹیم میں ہماری مائنارٹیز کے لوگ بھی شامل ہوں گے, اور خواتین جو کہ مور دین 50% ہے پاکستان کا وہ بھی شامل ہوں گے. تو آخری بات کر کے میں نے برطانیہ میں پریکٹیکل پولیٹکس شروع کی تھی, اور میں جس حلقے سے ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوا تھا اس حلقے میں 90% لوگ جو تھے وہ کرسچین کمیونٹی سے تعلق تھے, وہ مسیحی برادری کے لوگ. اگر وہ لوگ مجھے ووٹ نہ دیتے تو میں برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنانے میں کرسچین کمیونٹی نے مجھے بنایا تھا وہاں پہ. اس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بننے سے لے کے آج تک, پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بھی کرسچین کمیونٹی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا, اور اس کے بعد پچھلے 75 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہماری مائنارٹیز کمیونٹی نے اور ہماری کرسچین برادری نے ایک بہت رول جو ہے وہ ادا کیا ہے. تو میں پھر میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ گرمی میں اتنی دیر یہاں پر بیٹھے ہیں, تو آپ کو یہ گرمی کی مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات جو ہے وہ جو ہے مختصر کرنے جا رہا ہوں. جی, جو بھی کوشچن پوچھیں گے کرسچین کمیونٹی کے دوست جو ہیں ان کو ابھی میں آئی اوپن دا ہاؤس دی فار کوشچن آنسر. جی میرا نام ظاہر نذیر بھٹی ہے, میں چیئرمین ہوں پاکستان مائنارٹیز کمیونٹی کونسل کا. تو میرا تمام کمیونٹیز جو ہے ہماری ان کی طرف سے کوشچن ہے کہ جب پچھلا اقتدار کا دور تھا, گورنر تھے آپ, تو ہم نے 5% اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کوٹا کے لیے اپلائی کیا تھا ہائر ایجوکیشن میں, ہمیں 2% کوٹا ملا, جبکہ ہمارے پاس جابس میں 5% کوٹا ہے. تو کیا ہم 2% ہیں, اور کیا یہ آئندہ اب جس پارٹی میں آپ آ کے ہمیں یہ 5% کوٹا دیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 سر یہ ہے کہ یہ جو مائنارٹی ونگ ہے ہماری کمیونٹی تھوڑا سا اریگیٹ ہے, یہاں اگر ونگ کی جگہ افیئر رکھ دیا جائے, مائنارٹی افیئرز نام اگر دے دیا جائے تو یہ ہم سب کے لیے بڑا فخر کا باعث ہوگی, کیونکہ ونگ کا میننگ ایک شولڈر ہے. تو ہماری کمیونٹی میں جب ہم میٹنگس کرتے ہیں وہاں ونگ کو تھوڑا مناسب نہیں سمجھا جاتا. تو تیسرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہوگا, چھوٹا سا سر, یہ ہمارے جو نمائندے ہیں ایم این اے اور ایم پی ایس, یہ کرسچنس کی کیا تمام مائنارٹیز کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو الیکشن سے لیا جائے, کوئی آگے وقت ملے تو کیا آپ اس پہ غور کریں گے؟ تھینک یو. سوری, کس چیز کا؟
माइनॉरिटी इलेक्शन लड़ जो हमारे मिनोरिटी के नुमाइंदे हैं एमएनए और एमपीए, हम ये चाहते हैं कि वो इलेक्शन से जी ये पहले मैं आखिरी सवाल जो आपका है वो ले लेता हूँ। आपको मालूम है कि मुशर्रफ दौर में ये कानून पास हुआ था कि माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो डायरेक्ट अपने नुमाइंदे जो हैं वो चुनें। उसका मैं सपोर्टर हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं चाहिए कि पार्टी जो है उन लोगों को अपनी मर्जी से चुन लें जिनके अवाम में कोई रूट्स नहीं हो। लेकिन उसके साथ साथ ही एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने बहुत बड़ी कंपेन भी की थी कि उनको मेन जो था वोट उससे उनको फारग कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के पास 2 वोट होने चाहिए कि अगर आप हल्के में, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर बरतानिया में इलेक्शन हो रहा है और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, या पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और माइनॉरिटीज़ का मेरे हल्के में वोट नहीं है, तो मैं माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए कैसे लड़ूँ? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो मेन इलेक्शन में भी अपना वोट कास्ट करें। दूसरी बात आपने माइनॉरिटी विंग की है। ये माइनॉरिटी विंग आज़ाद है, अगर ये अपना नाम जो है जो भी रखना चाहेंगे, हमें इस पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी कहता हूँ, देखिए जब तक आप मुत्तफिक नहीं होती माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़, अपने हकूक़ आप हासिल करने में कामयाब नहीं होते। क्योंकि मैंने माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए बरतानिया में जंग लड़ी और एक वक्त ये था कि बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड में कोई मुसलमान पार्लियामेंटेरियन नहीं था। ये कोई आसान टास्क नहीं था, बहुत मुश्किल ये जो है मसला था और बहुत बड़ा ये चैलेंज था। तो अगर आप लोग आपस में इत्तफाक कर लें तो मैं समझता हूँ कि आपके बहुत से मसले भी हल हो सकते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंट जो मेरी ख्वाहिश, अगर क्रिश्चियन और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हवाले से अगर मेरी एक ख्वाहिश होगी तो वो ये होगी कि कोई 2, 3, 4 हल्कों में हमारे क्रिश्चियन भाई और बहनें डायरेक्ट इलेक्शन पार्टी के टिकट पे लड़के असेंबली में पहुंचे, तो फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आने आ रही। जी जी, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब मैं गवर्नर बना तो सबसे पहला तो मैंने ये काम किया कि मैंने तमाम अदारे जो हैं उनको खत लिखा कि हमने कोटा जो है माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को 5% दिया है, क्या वो 5% भी हम कोटा दे रहे हैं? तो यू बी सरप्राइज कि 5% कोटा भी लोगों को नहीं मिल रहा था। पहली बात तो जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप 100% इम्प्लीमेंटेशन करें। और दूसरा जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले का था वो भी बड़ी कोशिश के बाद मैंने 2% जो है वो करवाया था और मेरा ख्याल था कि जब 2% फिल हो जाएगा तो फिर हम 5% की भी बात जो है वो कर लेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि जब तक बच्चे जो हैं हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आला तालीम हासिल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक कोटा उनको निचली सतह पे जॉब पे तो मिलेगा, लेकिन जो बड़े जॉब हैं जो मॉडल करते हैं उनमें नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी तालीम जो है उसके लिए हमें जितनी भी फोकस करना चाहिए, जो भी कंसेशन देनी चाहिए, इंशाअल्लाह हमारी पार्टी जो है उसके लिए जद्दोजहद करेगी। अच्छा, मैंने वो बयान अभी नहीं पढ़ा, लेकिन जमहूरियत को बंद गली में नहीं जाना चाहिए। जमहूरियत तो ओपन जो है होनी चाहिए और सबको उसमें पार्टिसिपेट जो है करने की जो है वो इजाज़त होनी चाहिए और आवाम जिसको भी सर का ताज रखें वो जो है वो उसको हुकूमत करने का देखिए, पहली बात तो यह है शाखे कभी किसी हुकूमत का ऐसा नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए और भी हमारी पार्टी का ऐसा कौन है, सिर्फ ये हमारे मर्कजी
प्रेसिडेंट हैं, ये पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं, हुकूमत का राशिद रियाज साहब नहीं रहे हैं, मियाँ वहीद साहब नहीं रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कामयाबी जो है, जो मैं समझता हूँ कामयाबी है कि जब मैं टॉप टेबल पे मेरे साथ लोग बैठे हों तो आप ये ना कहें कि इसमें 12 लोग बैठे हैं, 10 जो हैं कमीशन खाते हैं। सबसे बड़ा मेरा चैलेंज जो है ये है, और इंशाल्लाह हम कम सीटें ले लेंगे लेकिन किसी बदअनवान और करप्ट बंदे को अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं बनाएंगे। देखिए, अभी कबल वक्त है। सियासत में मैं हमेशा कहता हूं कि सियासत में आप कभी भी कोई चीज़ रूल आउट नहीं करते, तो फिर अगर आप पहले कह देते हैं तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं होती। इसलिए आप सब लोग जानते हैं कि मैं 10 साल से सियासत में हूं। मेरा एक बयान आप नहीं दिखा सकते कि 10 साल पहले मैंने ये कहा था और आज मैं ये कह रहा हूं। तो मैं जो कहता हूं जब हुकूमत में होता हूं वही बात करता हूं, जब अपोजिशन में हूं फिर भी वही बात करता हूं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये कबल वक्त है। सियासत में हर चीज़ मुमकिनात का नाम सियासत है, रिकन्सिलेशन का नाम सियासत है, लोगों को इकट्ठे करने का नाम जो है सियासत है। तो मैं तो हमेशा रिजिड अप्रोच चाहे इमरान खान साहब की हो, चाहे रिजिड अप्रोच पीडीएम की हो कि नेगोशिएशन नहीं करना, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें इकट्ठे बैठ के इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले जो हैं वो करते हैं। थैंक यू। कि आपके साथ मिनॉरिटी विंग खड़ा है, क्योंकि मेरा विजन ये है, मेरे साथियों का विजन ये है कि हम सब पाकिस्तानी हैं सर, और दैट इज द ओनली रीजन कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की। जब हम तकरीर करते हैं मिनॉरिटी की, मेजॉरिटी की, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे आधे हकूक तो वहीं तल्फ हो जाते हैं। इसलिए बाहैसियत पाकिस्तानी मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, मसीही कम्युनिटी है, या इसके अलावा जो दूसरे मज़ाहिब हैं इस्लाम से हट के, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भरपूर हमायत करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी पार्टीज को, तो जो डिलीवरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने की वो अभी तक हमें और कहीं नजर नहीं आती। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मेरी चौधरी सरवर साहब से और चौधरी शाफिज साहब से मुलाकात हुई, पहली मुलाकात, जिसमें अभी ये डिसाइड नहीं हुआ था कि मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन करनी है या मैं किस ओहदे पे आऊँगा, मेरे जिम्मे क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, तो मुझे सरवर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की ड्यूरिंग डिस्कशन। मैंने इनके साथ एक कंसर्न अपना डिस्कस किया कि किसी भी पार्टी की, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी नामवर पार्टी गुजरी हो, कभी किसी मिनॉरिटी के सदर को, चाहे वो मरकज का है या सूबे का है, उसको कोर कमेटी में नहीं रखा गया। और जब कोर कमेटी में इतनी बड़ी वोटर तादाद को, जहां पे फैसले होते हैं, जहां पे फैसले होते हैं, अगर वहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो मेरा ख्याल है कि हम हकूक की बात नहीं कर सकते। सर मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने ये बात की, और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक और बड़ी खूबसूरत बात की, जो आज मैं यहाँ बैठे हुए, प्लीज सुनिए, ये बड़ी अहम बातें हैं इस मौके पे, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त ऐसे दुराहे पे खड़ा है जहां पे हमें ये फैसला करना है कि हमें अपने वोट का हक कहाँ इस्तेमाल करना है। लिहाजा ये बात बड़े ध्यान से सुने कि सरवर साहब ने मिनॉरिटी के हवाले से अपनी सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं उस दिन इन हकूक को मानूंगा जिस दिन मैं ये सोचूंगा कि एक आजाद टिकट पे, यानी जिसमें हमारा एक मुस्लिम बहन भाई अपने हल्के से टिकट पे इलेक्शन लड़ता है, इसी तरह एक मिनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ओपन टिकट पे इलेक्शन लड़े।
मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने सख्त मौसम में दोपहर 1 बजे से आप लोग मेरे साथ हैं। आप सब लोग मुबारक के हकदार हैं कि आज हम यहाँ जमा हैं, और मैं खास तौर पर इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये एतमाद बख्शा कि मैं पार्टी को ये एतमाद दे सकूँ कि हम हर तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हैं। गवर्नर साहब ने और काफिर साहब ने, क्योंकि अभी कहीं और जाना है बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ सामने तशरीफ लाएं ताकि हम एक कल्चर के मुताबिक उनको वेलकम कर सकें। और मैं लोकेश खोकर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे लोगों का जो मीडिया है, जब तक वो किसी भी पार्टी के साथ साथ नहीं देगा तब तक वो पार्टी या वो कौम आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे मैं एक और बात का बड़ा खास जिक्र करना चाहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साथी लोकेश खोकर का। आप सब जानते हैं और बहुत से हमारे मीडिया के दोस्त भी इनसे वाकिफ हैं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पीटीआई मिनॉरिटी पंजाब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इनको पार्टी में वेलकम करें। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई हेनरी चार्ल्स साहब का, जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। वो बिल्कुल पॉलिटिक्स के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, और आज भी स्पेशली मेरी गाड़ी वो चला के लाए हैं, यानी मैं उनकी गाड़ी में हूँ और वो एज ड्राइवर मेरे साथ आए, सामने खड़े हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि फैमिली जब तक आपको सपोर्ट ना करे आप आगे नहीं जा सकते। इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, पत्रस साहब, पप्पू ट्रक्का वाले के नाम से ये मशहूर हैं। वो भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हैं।